So good morning, student. Welcome for the Fit India seminar. Just give me a moment. I'm sharing my screen and then we will start the session. So welcome for the Fit India movement. I hope the Fit India movement screen is visible to all. If yes, then please message in the chat box with yes. And if no, then with the message okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. So guys, good morning and welcome for the Fit India movement seminar or webinar. I'm glad that the government of India is thinking about our fitness because पिछले कुछ डेढ़ दो सालों में we have not thought about our health as well as the wealth was also very tight. So the most important thing for the nation is wealth, but wealth will be useful or utilized once you have a good health. So we have to think of and we have to think about our health in a very definite manner. So on National Sports Day, Modi ji congratulated all our sports lovers across India, and he started the day with the hope and a sportsmanship where he thought that the society will shine always in the sports world or sports stream. So basically फिट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो एक पर्टिकुलर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था. एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, मोबाइल सॉफ्टवेयर है, इंडियन मोबाइल सॉफ्टवेयर, बट it was associated with the government of India and government of India ने उन्हें सपोर्ट किया और ये नेशन वाइड एक मूवमेंट शुरू किया इन द ईयर 2019. 2019 में हम फिट तो इंडिया फिट ये स्लोगन के साथ हमने शुरू किया. द मेन गोल फॉर दिस फिट इंडिया मूवमेंट इज टू मेक आवर लाइफ वेरी एक्टिव. Why very active? Because we are not that active. And the most prime factor for our country is we have huge number of youngsters. Now, youngsters for the society and for the government is accountable from the age of 18 to the age of retirement, that is 58 to 60 years. तो जब तक आप जॉब करते हो, जब तक आप काम करते हो, you are young in the minds on the paper of government. एंड ये फिट इंडिया मूवमेंट इसलिए हमने शुरू किया बिकॉज हमारे आने वाली जनरेशन को फिट रहना बहुत ज़रूरी है. मेंटली, फिजिकली हमें बहुत स्ट्रेंथफुली काम करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है. नाउ a slight information about Fit India movement. It was initiated on National Sports Day, 29th August in the year 2019 by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Through this movement, the Prime Minister had engaged the citizen to adjust to a genuinely dynamic schedule. अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि we need to fit, we need to maintain a very genuine and a dynamic schedule. And he started the ceremony with the grand introduction of the Fit India movement at the Indira Gandhi Stadium. A board headed by Sports Minister Kiran Rijiju is shaped to take the progress ahead. So he is now the responsible person to take this movement ahead and spread the initiative taken by the government of India all over the India. Now, why we need a fit India movement और स्पेशली ये फिट रहने के लिए हमें सरकार क्यों कह रही है? Because Indians shy away from physical activities. नंबर वन. सेकेंडली, हम घर बैठे बैठे और हमारा जो ईटिंग लाइफस्टाइल है जो थोड़ा मॉडर्न हो गया है, उसकी वजह से ओबेसिटी लेवल या अंडर वेट लेवल बहुत बढ़ गया है. सो 54% ऑफ इंडियंस आर फिजिकली इनएक्टिव. व्हाई वी आर इनएक्टिव? पहले बिफोर पैंडेमिक हम लोग
डिजिटल गेम्स में बहुत इन्वॉल्व थे। एटलीस्ट वहाँ पे हम स्कूल्स जाकर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, सोसाइटीज में कुछ हम लोग खेल सकते थे। बट देन द मोमेंट लॉकडाउन स्टार्टेड, पैंडेमिक स्टार्टेड, एवरीथिंग इज एट होम इन आवर फोर वॉल्स और अंडर आवर फोर वॉल्स। अब ये चार दीवारी के अंदर जब हमने कोई चीज शुरू की तो हमने फिटनेस को थोड़ा दूर रखा। जैसे ही लॉकडाउन और पैंडेमिक शुरू हुआ, द फैमिली गैदर, द फैमिली केम टुगेदर, स्टार्टेड फोकसिंग ऑन ईटिंग न्यू थिंग्स। कोई पकोड़े बना के खा रहा है, कोई घर में केक्स बना रहे हैं, कोई घर में अलग अलग तरीके के खाने बना रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा फैमिली टाइम स्पेंड कर लिया बैठे बैठे। वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट आवर। हमने बैठ के खेलने वाले गेम्स लाए, कैरम बोर्ड लेकर आए होंगे, चेस लेकर आया होगा, कोई ऊनो का पैकेट लेकर आया होगा कार्ड्स गेम्स खेलने के लिए। सो वी वर नॉट एक्टिव एट ऑल, एंड लेस देन 10% एंगेज इन रिक्रिएशनल फिजिकल एक्टिविटीज। 10% जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में, बहुत कम लोग उसमें काम करते हैं। सो रिक्रिएशनल फिजिकल एक्टिविटी 10% से कम लोग करते हैं। अब ये प्रॉब्लम्स क्या है? अगर हम लोग फिट नहीं रहेंगे, फिट इंडिया मूवमेंट को अगर हमने सीरियसली नहीं लिया, या फिट इंडिया मूवमेंट को हमने नहीं इनिशिएटिव किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ओबेसिटी 13.5 करोड़ है, वो और बढ़ेगा। हर एक इंसान जो है कहीं ना कहीं स्वीट के पीछे भागते रहता है। सो डायबिटीज आज 7.2 करोड़ है, कल को आने वाले दिनों में ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम बढ़ जाएगा। मोदी जी का मानना है और कहना है, एज पर द रिसर्च की, आजकल 17 से 18 साल के बच्चों को भी डायबिटीज डिटेन होता है, 18 साल के नीचे के बच्चों को भी डायबिटीज होता है, और डायबिटीज के कारण वो ब्लड फ्लक्चुएशन या फिर शुगर लेवल फ्लक्चुएशन के कारण कई लोगों का डेथ भी होता है। सो इफ द यंग जनरेशन इज नॉट एक्टिव एंड इफ द यंग जनरेशन इज गोइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट बिकम्स अ वेरी लॉस टू द नेशन, बिकॉज हम लोग एसेट है हमारे कंट्री के लिए। अगर हमने फिजिकल एक्टिविटीज नहीं की तो हमें थायराइड डिसऑर्डर होने के चांसेस है, जो आज 4.2 करोड़ लोगों को है। हाइपरटेंशन आज 8 करोड़ लोगों को है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज 5.5 करोड़ लोगों को है। रिसेंटली कल परसों की बात है शायद, एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी का डेथ हुआ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। नाउ ही डज फिजिकल एक्टिविटीज, वो करते भी है, बट देन सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, हमारे खाने पीने का तरीका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कितना खाना चाहिए, हम लोग को कितना कंज्यूम करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो वी नीड टू थिंक अबाउट आर फिट इंडिया मूवमेंट। अब ये फिट इंडिया मूवमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है उसमें? सो सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो आप कंट्रोल कर सको, जो आप डायरेक्ट कर सको। कुछ लोग मेंटली इल रहते हैं, अनफिट रहते हैं, कुछ लोग फिजिकली इल रहते हैं, अनफिट रहते हैं। सो हेल्थ, दैट इज फिजिकली फिट रहना और साथ ही साथ मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है। अगर हमने पैरा ओलंपिक्स की बात की तो दे आर मेंटली वेरी फिट। फिजिकली कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, बट देन टू उन्होंने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज इंडिया के लिए लेकर आया है, बिकॉज उनका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत स्ट्रांग है, डिटरमाइंड है। दे आर एबल टू एंड दे डू कंट्रोल, डू डायरेक्ट एंड डू मैनेज देयर मेंटल हेल्थ। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव हम लोग रहेंगे हमारे हेल्थ से रिलेटेड, दैट इज नथिंग बट अ गुड हेल्थ। हमारी सोच हमारी तबीयत को बनाती है। कई बार हमें एक नेगेटिव वाइब्स आता है एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि ये बहुत नेगेटिव वाइब आ रहा है, शायद आज मेरे को तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज बाहर नहीं जाना चाहिए। बट देन टू एक अर्जेंट काम से हम बाहर जाते हैं एंड हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। दैट नेगेटिव वाइब इज नथिंग बट a point or source where you need to think and start thinking positively. So health basically, हम कितने खुश रहते हैं, कितने एक्टिव रहते हैं, वो हमारे लिए हेल्थ है। सिर्फ घर में बैठे रहना, 3 टाइम का खाना खाना इज नॉट हेल्थ। बट ये हेल्थ को मेंटेन कैसे करें, हाउ टू स्टे हेल्दी? तो अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले बी फिजिकली एक्टिव। मोदी जी कहते हैं कि हमें फिजिकली एक्टिव रहना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी 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 इंपॉर्टेंट?
क्योंकि उन्होंने एक स्लोगन लेकर आया है। मोदी जी कहते हैं फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। अगर आप हर दिन आधे घंटे फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ करोगे, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करोगे, तो आप कंटिन्यूअसली अपने फिजिक को मेंटेन करोगे। एंड अगर आपने सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा या कंसिस्टेंसी का कोई कंसेप्ट आपको अगर पता है, तो जितना कंसिस्टेंटली आप अपने पे ध्यान देते हो, उतना कंसिस्टेंटली आपका ग्रोथ होता है, राइट? सो फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, चाहे वो रनिंग हो या ब्रिस्क वॉकिंग हो या रेगुलर एक्सरसाइज हो या फिर कोई डांस एरोबिक या बैलेंस एक्सरसाइज हो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर एज, इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटी। हमारे पास एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है जिनकी मदर 60+ ईयर्स है। वो आज के तारीख में 10 किलोमीटर का रनिंग करते हैं, 10 किलोमीटर से ज्यादा का रनिंग करते हैं। मिलिंद सोमन जी का नाम सुना होगा आप। मिलिंद सोमन also started in the late 30s and 35, and now he is the Fit India movement's ambassador, right? तो वो इतने सारे लोग जो हैं वो जिम नहीं जाते, वो कोई मस्कुलर एक्टिविटीज नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ भागते रहते हैं। और मिलिंद सोमन जी का कहना है कि मुझे अगर एक भी मिनट मिल जाए तो मैं ब्रिस्क वॉक कर लेता हूँ, कई बार रन कर लेता हूँ, 100 मीटर रनिंग कर लेता हूँ। आई डू वॉट एवर आई कैन डू, बिकॉज बीइंग अ सेलिब्रिटी एंड बीइंग अ वेरी limelight person, they don't get time. They are very busy in photo shoots, running their video shootings and all. तो कहीं ना कहीं हमें उनसे ज़्यादा तो टाइम मिलता है। बीइंग अ नॉर्मल पर्सन हमारा एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, अगर आप वर्किंग हो तो वर्किंग शेड्यूल में से आप निकाल सकते हैं टाइम, राइट? सो एक्सरसाइज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो सर क्या कर सकते हैं? तो हम योगा कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी हमेशा कहते हैं योगा से होगा, और यही स्लोगन मेरे घर में हर रोज चलता है, बिकॉज आई बीइंग एन हस्बैंड ऑफ अ योगा टीचर और योग शिक्षक, रोज सुबह उठो, योगा करो। आई मे नॉट बी फिजिकली फिट राइट नाउ एट दिस मोमेंट, राइट, बट आई एम मेंटली स्टेबल, आई एम मेंटली फिट, आई हैव एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू हैंडल माई स्ट्रेस। आप कभी भी मुझे मिलोगे, आपको स्माइलिंग वाला चेहरा दिखेगा, कभी भी रोता हुआ चेहरा या स्ट्रेसफुल चेहरा नहीं दिखेगा। एंड दैट इज ओनली रीजन, और उसका एक ही रीजन है कि योगा। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव सिक्स पैक्स एब्स, इट इज नेसेसरी टू बी हैप्पी। if you are happy, your surrounding and your family will be happy, and if your family and your surrounding is happy, your colony will be happy, and if your colony is happy, your society will be happy. If your society is happy, then आपका नगर, आपका शहर, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जो स्टेट है वो हैप्पी रहेगा। सारे स्टेट अगर हैप्पी रहेंगे तो पूरी दुनिया हैप्पी रहेगी। दैट इज द होल मंत्र बिहाइंड फिट इंडिया मूवमेंट। तो आजकल आप योगा के लिए बाहर नहीं जा सकते, तो क्या कर सकते हैं सर? ऑनलाइन योगा सेशन ज्वाइन कीजिए। नाउ माय मिसेस हैंडल्स नंबर ऑफ बैचेस, आई बीइंग दी पार्ट ऑफ अ बैक एंड पर्सन, आई स्टार्ट दी जूम लेक्चर्स, जूम लिंक्स, ठीक है, उनके फी स्ट्रक्चर का मैं काम करता हूँ, उनके मार्केटिंग का मैं देखता हूँ, राइट? But then at the end, we have number of candidates, number of people who are joining for yoga session. घर पे बैठ के आपको सिर्फ, जैसे आप यूट्यूब में लेक्चर सुनते हो या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो, वैसे ही आपके लाइव सेशन वहाँ पे होते हैं, राइट? एंड दैट इज वेरी इजी फॉर अस। आप अपने घर में कंफर्टेबली बैठ के योगा कीजिए, शांत जगह में, आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना। यहाँ पे जूम लिंक खत्म, यू गो टू योर बेड, रिलैक्स एंड हैव योर ओन टाइम। नो ट्रैवलिंग टाइम, no traveling expenses. We can do if we want to do. Play outdoor games. Nowadays, outdoor games खेलना is bit tough. गवर्नमेंट के नॉर्म्स कोविड-19 के तो है ही है, बट सोसाइटीज के अलग अलग नॉर्म्स हैं। तो अगर हम लोग आउटडोर गेम नहीं खेल सकते तो क्या कर सकते हैं? तो कुछ ऐसे गेम्स को आप इन्वेंट करें जो फिजिकल एक्टिविटीज में ज़्यादा, साइकिलिंग करेंगे, हम लोग साइकिलिंग भी कर सकते हैं, राइट? छोटे मोटे गेम्स खेल सकते हैं, बट जो भी आप आउटडोर गेम खेलोगे आज के तारीख में, आपको आपके सोसाइटी का, आपके कॉलोनी का परमिशन इज वेरी मच मैंडेटरी। आपके जो दोस्त हैं उनके हेल्थ का आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बिकॉज एक अगर बीमार है तो वो बाकियों को तकलीफ देगा।
तो हमें सबके हेल्थ का ख्याल भी रखना है और सबके फिटनेस का भी ख्याल रखना है। तो जो भी आउटडोर गेम्स आप खेलने की सोचेंगे, वो थोड़ा सोच समझ करके दूसरों को तकलीफ ना देते हुए हमें करना है। भले ही ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है, बट गवर्नमेंट हमारे अच्छे के लिए सोच रही है। हम भी हमारे अच्छे के लिए सोच के सोसाइटी को तकलीफ देकर अगर ये इनिशिएटिव या ये मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, देन वी आर रॉन्ग। वी आर नॉट डूइंग और सपोर्टिंग ऑनेस्टली एंड जस्टिफाई नहीं करेंगे हम जो हमारे गवर्नमेंट ने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। नाउ स्पोर्ट्स में भी अलग अलग स्पोर्ट्स है। अब स्पोर्ट्स क्यों खेलना है? एक तो सबसे पहले ये आउटडोर प्ले है। छोटे बच्चों को तो बहुत मजा आता है, साथ ही साथ अगर क्रिकेट हो, फुटबॉल हो बरसात के दिनों में, तो बड़ों को भी मजा आता है। अगर दो अलग अलग टीम्स खेल रही है तो हम सोशली उनके साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारा नेटवर्क बढ़ता है। हमारा नेटवर्क बढ़ता है, उसके साथ साथ जैसे नेटवर्क बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी एनर्जी लेवल भी बढ़ती है, बिकॉज उनमें से जो भी लोग हमसे मिलते हैं, कई फिटनेस फ्रीक होंगे, कोई मेंटली फिटनेस फ्रीक होगा, कोई फिजिकली फिटनेस फ्रीक होगा, कोई ओबेस है बट देन टू उनका पॉजिटिव माइंडसेट है, जो अंडर वेट है वो भी पॉजिटिव माइंडसेट से लेकर आते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली हमारा गोल ये होता है कि हम साथ में खेलें, इम्प्रूव करें फिजिकल फिटनेस को। कुछ फिटनेस ट्रिक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो वो पॉलिसीज या नॉर्म्स फॉलो करते हैं, वो सुन सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, एंड एक दूसरे के साथ टीम बॉन्डिंग बनती है। और टीम बॉन्डिंग एज अ टीम हम लोग खेलते हैं तो हमें बहुत मजा आता है। एंड ओवरऑल इसके पीछे हम एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बॉन्डिंग के साथ साथ एक सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। कल हमारे घर में कुछ फैमिलीज में खुदा ना करे कुछ बुरा हुआ, तो हमारा एक कॉल पे काम हो जाता है। तो स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी देता है, चाहे वो सोशल हो, पर्सनल हो या इमोशनल एंगल हो, हर लेवल पे हमें वो काम करता है। अब आउटडोर और स्पोर्ट्स और योगा के बारे में तो हो गया, ये तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन वेट मैनेजमेंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हेल्दी वेट मैनेजमेंट हमें ज़रूर रखना चाहिए। अब हेल्दी वेट मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारा जो बीएमआई लेवल है वो बार बार चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि हर एक एज के हिसाब से, हर एक वेट के हिसाब से हमारा बीएमआई लेवल डिसाइडेड है, राइट। सो अगर हम अंडर वेट है तो योर बीएमआई इज लेस देन 18.5। अगर हम हेल्दी वेट है तो हमारा बीएमआई है 18.5 टू 24.9। अगर हम ओवरवेट है तो हमारा बीएमआई इज 25 टू 29.9, एंड अगर ओबेस है तो योर बीएमआई इज 30 और हायर। सो वी नीड टू चेक रेगुलरली, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम के बाद, कि हमारा जो वेट है उसका बीएमआई कितना है। हम अंडरवेट चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, ओवरवेट चल रहे हैं, ओबेस चल रहे हैं, एक्सट्रीमली ओबेस है, ये हमें जरूर चेक करना चाहिए। हम भले ही मस्कुलर हो बट ओवरवेट नहीं होना चाहिए। हम भले ही ओबेस हो बट देन टू वो लुक वाइज ओबेस होना चाहिए, वेट वाइज ओबेस नहीं, राइट। So you can and we can manage all these things with the help of going to gyms, by attending yoga sections, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जो आपका कंफर्ट है उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। एंड यही सब बैलेंसिंग के लिए हमारा फिट इंडिया मूवमेंट हमें लेकर आया। अब वेट मैनेजमेंट के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो फ्रूट एंड सब्जी बहुत खाने चाहिए, राइट। वी नीड टू गेट बैक टू आर ट्रेडिशनल ईटिंग पैटर्न। अब कल ही की बात है, माई sister came and she is like कि we stay in a very village type of area, and हमारे यहाँ पे accessibility नहीं है मार्केट के लिए, so I need to eat pizza. Now that is not a very healthy food item, but then too हमारे food items या food eating की cravings होती है, we need to fulfill that cravings, but अगर continuously हम वही खाते रहे, आउटडोर फूड करते रहे, या फिर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स या ढाबेस पे अगर कंटिन्यूसली खाते रहे, तो हमारा पेट तो बिगड़ेगा ही, साथ ही साथ हमारी तबीयत भी बिगड़ना शुरू। तो फोकस ऑन आर ट्रेडिशनल फूड, रोटी सब्जी दाल चावल, घी भरपूर खाए। ऑयल, हम लोग जैसे हमारे व्हीकल को ऑइंटमेंट करते हैं, सेम ऑयलिंग एंड ऑइंटमेंटिंग घी से होता है हमारे शरीर। So apple and pear gives you a very good body shape. Apple is for male and
हियर इज फॉर फील। तो जैसा आप खाओगे वैसा आप बनोगे। तो बहुत सारे लोग लड्डू खाते हैं और वो दिखते भी लड्डू जैसे, राइट? सो फैट ऑन द इनसाइड पार्ट स्टोर्स एंड गिव्स यू अ वेरी बैड शेप। सभी का जो स्केलेटन फिटनेस या स्केलेटन पोजीशन है इज सिमिलर, बट उसके ऊपर जो फैटनेस है दैट इज व्हाट विस्करल फैट इज। ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, दैट इज योर विस्करल फैट। एंड देन उसके बाद बहुत सारे साइंटिफिक टर्म है, वो हमें थोड़े से अवॉइड करने चाहिए बिकॉज वी आर नॉट हियर टू लर्न साइंस और related to the body structure. Our main focus is on fat, subcutaneous fat और fitness। ओबेसिटी के लिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वंस यू आर ओबेस आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है, हाइपरटेंशन आ जाता है, मतलब छोटी छोटी बातों में आप बहुत हाइपर हो जाते हो। हार्ट डिजीज एंड हार्ट स्ट्रोक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस। वी हैड अ फ्रेंड, मेरे कजिन का एक दोस्त है, उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते थे। दैट सैटरडे नाइट दे हैड अ वेरी गुड एंड ऑफ द डे। वीकेंड में उन्होंने अच्छी खासी पार्टी की, संडे को उन्होंने आराम किया एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन मंडे ही गॉट अ कॉल दैट ही इज नो मोर। व्हाई? बिकॉज फिजिकली वो बाहर से फिट दिख रहे थे, बट नो एक्सरसाइज, नो प्लानिंग अबाउट आउटडोर गेम्स एंड ऑल। तो बाहर से आप कितना ही फिट दिखो, बट अंदर से आपके हड्डियां, आपका जो मांस है, उनको कहीं ना कहीं ऑइंटमेंट, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन द रिजल्ट इज कि जितना ज्यादा मेहनत आप करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट? सो एकदम हेल्दी होना इज ऑल्सो वेरी गुड, बट ओवर हेल्दी इज नॉट। सो कम एक्सरसाइज इज नॉट गुड, ओवर एक्सरसाइज इज नॉट गुड, प्रॉपर एक्सरसाइज इज। हमारे पेट में जितना खाना चाहिए जाना चाहिए उतना ही जाना चाहिए। हमारा शरीर जो है जितना वेट उठा सकता है उतना ही उठाना चाहिए, और हम जितना दूर भाग सकते हैं हम उतना ही भागना चाहिए, राइट? सो ओबेसिटी को कम करने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, एंड ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द यंगस्टर्स फ्रॉम 18 to 65, नो स्मोकिंग एट ऑल। Why? Because healthy lungs को हम लोग स्मोकर्स लंग बना देते हैं। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप चिकन का जो कलेजा है वो लेकर आइए, छोटा सा आग लगाइए, जो मराठी में बोलते हैं ना शेकुटी, या फिर आजकल तंदूरी के लिए हम लोग करते हैं, बस उसमें भूनिए एक 5। जो कलर का वो कलेजा बनेगा वही कलर का हमारा जो लंग्स है वो आफ्टर कंटिन्यूस स्मोकिंग बनता है। सो फ्रीक्वेंट स्मोकिंग इज नॉट गुड, कंटिन्यूस स्मोकिंग इज नॉट गुड, बेसिकली स्मोकिंग इज नॉट, क्योंकि हम वो बचपन से नहीं करते थे, एंड वो नहीं करना भी चाहिए टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ। जो चीज़ हम गलत तरीके से सीखते हैं गलत है, दैट इज नॉट हेल्थ। आप भले ही कितना ही फिजिकली फिट रहो, बट अंदर से यू आर बर्निंग योर बॉडी। सो बर्निंग योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, दैट मीन्स एक टाइम के बाद हम बाहर से भी जलना शुरू करेंगे, एंड वो टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा, एंड यू मे नॉट नो कि वो टाइम कब आएगा। सो नो स्मोकिंग एट ऑल, नो ओकेशनल स्मोकिंग एट ऑल। टोबैको स्मोकिंग नहीं, तो फिर चैनी खैनी, चैन से मजा ले। So once you take the maza, you get the saza. So no tobacco at all. And again, few people says that few pegs of alcohol is good for health. But when the few sip of alcohols becomes number of bottles of sips of alcohol, you never know. हम सोचते हैं चलो little little, but that little little becomes huge, and that becomes a habit, and then we became addict, and then हमको वो हर बार चाहिए, otherwise quarter to 9 हमारे हाथ शेक करने लगते हैं। सो बेसिकली ऐसी चीजें जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है शुरू ही नहीं करनी चाहिए, टेस्ट भी नहीं करना चाहिए, राइट? बिकॉज इट इज नॉट गुड। और अगर आप बोलोगे कि सर जिंदगी में आए तो क्या करना है, बहुत कुछ है करने के लिए। अदर देन दिस देर आर नंबर ऑफ थिंग्स वी नीड टू डू फॉर द सोसाइटी, राइट?
सो नो स्मोकिंग, नो टोबैको एंड नो अल्कोहल। स्टॉप अल्कोहल लिखा है, बट स्टार्ट अल्कोहल नहीं करना है, सो दैट वी डोंट गो एट स्टॉपिंग द अल्कोहल। Then in सबके बाद time management is in very much important, because see, there are number of working people in the world, there are number of businessmen in the world, there are number of students in the world, हर एक सेक्टर के लोग हैं दुनिया में, हाउस वाइफ भी है, सबको टाइम तो चाहिए। सो मैनेजिंग योर टाइम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड आप कब करते हो वो आपका एक रूटीन शेड्यूल के हिसाब से आपको अपने फिट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक 30 मिनट्स 40 मिनट्स कैसे निकालेंगे, दैट इज एन एक्टिविटी ऑफ टाइम। एक एक समय था जब हमारे पास व्हीकल्स नहीं थे और साइकिल ही था, तो हमारे जो दादा परदादा लोग हैं वो साइकिल में साइकिलिंग कर करके ये शहर से वो शहर चलते थे, एंड देन देयर आर नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन हु आर एट द एज ऑफ 92 93 एंड someone crossed 99 100 and 101। सो ये क्यों हुआ, क्यों वो लोग हेल्दी थे, हम लोग वो जानने की कोशिश करते हैं वो क्यों हेल्दी थे, बिकॉज उनका फिजिकल फिटनेस इनडायरेक्टली वैसे था। साइकिलिंग आज हम लोग शौक के लिए करते हैं, इंस्टाग्राम स्टेटस के लिए करते हैं, पोस्ट के लिए करते हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, बट देन वो टाइम में दे वर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग, वॉकिंग करते थे। My father used to say that I started traveling from one place to another place, and almost half day हमारे जाता था। आज अगर हम लोग सोचे ट्रैवलिंग में हाफ डे निकल जाए, तो दैट मीन्स योर टाइम वेस्ट, योर मनी वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। सो वी नीड क्विक ट्रैवलिंग थिंग, एंड इसलिए हमने आजकल हमारे पैरों में शूज के जगह में बाइक्स लेकर आए, हम ऑटो से ट्रैवल करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है तो डेफिनेटली हमें व्हीकल लगेगा, बट शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के लिए हमें छोटे छोटे मोटर व्हीकल्स को अवॉइड करना पड़ेगा। सो इन सब के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड आपका शेड्यूल कैसा है, आपका टाइमिंग कैसा है, वो आप डिसाइड करेंगे। मेरा फ्रेंड 10 बजे फ्री हो जाता है तो मुझे भी फ्री होना है, दैट इज नॉट द शेड्यूल। if I am waking up and I get wake up at 5:30 p.m. sorry 5:30 a.m. and मेरा शेड्यूल सुबह 5:30 को उठने से रात को 10 बजे तक खत्म होता है, एंड माय फ्रेंड एंड कलीग एंड प्रोफेसर अनूप सर शाम को 6 बजे फ्री हो जाते हैं, और वो कहीं और सिटी में रहते हैं, मैं कहीं और सिटी में रहता हूँ, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि हम एक सेंटर पॉइंट पर मिले एंड एक्सरसाइज करें, तो वो ना उनसे हो पाएगा ना मुझसे हो पाएगा। इट्स बेटर हम एक जगह में अपनी जगह में हम हमारा टाइमिंग मैच करें, उनको मोटिवेट करें कि सर आप अपने हिसाब से शेड्यूल करो बट यू डू, वो मुझे मोटिवेट करेंगे कि सर आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना के एक्सरसाइज करो, तो आई विल डू। डेली अपडेट्स लेंगे कैसे चल रहा है क्या चल रहा है, वी विल शेयर द नॉलेज वॉट एवर वी आर अर्निंग, वी विल शेयर द टाइमिंग्स। वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर मैनेजमेंट, वहाँ पे आप अपने शेड्यूल्स फॉलो करते हो, अपने टाइमिंग्स को फॉलो करते हो, लेकिन if you are becoming a goat, then you won't become fit for the nation. स्ट्रेस मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। हम अगर प्रॉपरली टाइम मैनेज करेंगे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ईजिली होगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं शाम को देखते हैं, शाम को टाइम मिला तो आई विल गो, शाम को नहीं टाइम मिला तो टुमारो आई विल गो, बट बर्डन हो जाता है ये फिट इंडिया मूवमेंट, एंड देन द स्ट्रेस केम, एंड कहीं ना कहीं वो एंगर आपका निकल जाता है अपने फैमिलीज पे, अपने फ्रेंड्स। So basically stress management is also important, because हमें हमारा खून खोलना नहीं है, खून को शांत रखना है, खुले काम करना है, एंड हमें वो स्टेट ऑफ जो पीस है वो कंटिन्यूसली मेंटली फिट करके रखना है। एक्सप्रेस योर फीलिंग, कॉम्बैट योर डिप्रेशन, जिससे हो सके अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। जब तक आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना, आप अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगे। इसलिए मूवीज में एक पर्टिकुलर सॉन्ग हो जाता है जहाँ पे वो हीरो हीरोइन को अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। एक इमोशनल ड्रामा चलता है जहाँ अपना एक अपनी जो फैमिली सीनियर्स है, माँ है, पिताजी है, वो अपने बेटे से कुछ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, बेटा अपने फैमिली से फीलिंग एक्सप्रेस करता है मूवीज में। सेम वी नीड टू डू, एक्सप्रेस फीलिंग्स। इंस्टाग्राम स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस में स्टोरी रख के अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो कर लेते हैं, लेकिन टू वे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए व्हेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग। अगर मैं अपने फ्रेंड को कुछ बोल रहा हूँ, यार दिस इज द प्रॉब्लम, देयर शुड बी अ कंसोल, देयर शुड बी अ सपोर्ट, एंड देयर शुड बी सम सॉल्यूशन फॉर दैट। सिर्फ एक्सप्रेस करना इज नॉट, बट अगर आपके पास कोई पेट है तो यू नीड टू
talk to that pet continuously and become a good friend to it. Or finally, for all our youngsters, good sleep is very much important, जो आजकल नहीं हो पा रहा है बिकॉज नींद नहीं आती, मोबाइल हाथ में है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, हर टाइम हर मिनट हमारे पास होता है। हमारा लास्ट मिनट पिछले 1-2 मिनट पहले होता है, फ़ोन रख दिया, अगेन वी टेक द फ़ोन एंड देन अगेन एक्टिव ऑन एपर। सो जितना ज़्यादा नींद हो सके उतना ज़्यादा नींद इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। नींद पूरा नहीं होता है, प्रेशर ऑन आवर माइंडसेट, वंस द प्रेशर ऑन आवर माइंड, वो ब्रेन फंक्शनिंग जो है थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है एंड देन मेमोरी पावर कम हो जाती है। याददाश्त कम होने के बाद हम सोचना कम कर देते हैं। क्रिएटिविटी दिमाग की बहुत कम हो जाती है बिकॉज़ कहीं न कहीं हमेशा अपने माइंड को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम लोग रखते हैं। सो माइंड मे नॉट सपोर्ट समटाइम्स। कॉस्मेटिक केयरफुली यूज़ कीजिए, स्पेशली टू ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स जो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक्स के लिए पोस्टिंग करते हैं, अपने बिज़नेस के लिए पोस्टिंग्स करते हैं। यू नीड टू यूज़ योर कॉस्मेटिक्स वेरी केयरफुली। अगर आपका स्किन टोन, आपका फेशियल आपका बॉडी में जो हर एक पार्ट है, अगर वो हेल्दी है, देन यू आर अ पार्ट ऑफ फिट इंडिया। सिर्फ फिजिकल फिट होना इज़ नॉट नेसेसरी, राइट? हर एक बॉडी पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट है फिट इंडिया मूवमेंट के लिए। नो प्लास्टिक, बीपीए knows scientifically as bisphenol a direct toxicity। इसकी वजह से कैंसर होता है, इनफर्टिलिटी एंड फर्टाइल डेवलपमेंट होता है, ब्रेन फंक्शनिंग करना बहुत रुक जाता है, कई बार हार्ट डिजीज होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल फॉर अस इज मिस्टर माइकल जैक्सन, जिन्होंने इतने सारे प्लास्टिक सर्जरीज की और उन्हें कंटिन्यूसली मेंटेन करने के लिए उन्होंने मेडिसिन का इस्तेमाल किया। उसके साथ-साथ मेडिसिन्स के साथ-साथ हेल्दी डाइट होना चाहिए जो कि नहीं था और वो हमें मेंटेन करना है। रोटी, 2 सब्ज़ी, दाल एंड चावल, वी नीड ऑल these things, we don't need any pizzas, any burger or any Chinese product or any foreign cuisines। तो घर में जो बने वो खाएँ, अलग-अलग फ्रूट्स, सब्जियों को खाएँ एंड हेल्दी रहें। This is the pyramid of food। Due to shortage of time, we are running forward। If your good diet, then you have a good health। If you have a very bad diet, you have a very bad health। So bad health will lead to the weak nature। So what we eat, we become, and we will be what we eat। Ultimately ये give and take है। आप जो अच्छा खाओगे उतना अच्छा हेल्थ बनेगा, अगर आप बुरा खाओगे उतना बुरा हेल्थ बनेगा। So diet and health is linked to each other। So what to eat, अपने दिमाग के लिए eggs, लारी सब्जी, राइट? बहुत सारे अलग-अलग सब्ज़ी हमें खाने चाहिए, मशरूम जैसे सब्जियाँ खानी चाहिए। आप बोलोगे सर मशरूम तो बहुत महँगा होता है, 30-40 रुपीज़ का एक पैकेट होता है एंड बीइंग इन कल्याण वी हैव आवर सब्ज़ी मंडी, जहाँ पे आप लॉट में लेकर आ सकते हो 2 ढाई किलो का और आपको एमआरपी से भी कम में मिलेगा, होलसेल प्राइस में मिलेगा। सो वी कैन यूटिलाइज़ दैट सोर्स ऑफ बाइंग द मटेरियल और प्रोडक्ट्स, राइट? फ्रूट्स को ज़्यादा कंज़्यूम करना चाहिए। बेसिकली ईट मोर healthy foods and become a very healthy person। Choose water as a drink। Cold drinks को avoid कीजिए। Drink 8 glasses per day। Preferably go for mineral water जो हमारे घर में बनता है, not that packaged water, right? अगर पानी नहीं पीना है आपको कंटिन्यूअसली तो आप कोई फ्रूट जूस बना के पी सकते हो। बट हाइड्रेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहोगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी फिटनेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ाओगे। एंड एट द एंड, लिमिट योर मोबाइल यूज़। जितने लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स को सुनिए। हम लोग कैमरा ऑन नहीं करते तो बस फ़ोन को स्पीकर मोड में रखिए, आँख को आराम दें और सिर्फ़ सुनने में फ़ोकस करें कि हमारे टीचर्स क्या बोल रहे हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं बट एट द एंड सुनने के बाद वो रीड करेंगे तो आपका जो विजुअल टाइमिंग है स्क्रीन का वो कम होगा, स्क्रीन टाइम कम होगा। एट द एंड जितना कम से कम आप टाइम दोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में पढ़ोगे, दैट इज़ द ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन ऑफ योर आइज़ एंड योर टेक्नोलॉजी। बी हैप्पी एंड लाफ फॉर नो रीज़न। कोई लोग अगर बिना रीज़न से हँसते हैं तो उनके साथ हँसे, बिकॉज़ आफ्टर ऑल लाफ्टर इज़ अ गुड मेडिसिन एंड वी नीड टू लाफ ईच एंड एवरी। मेडिकल चेकअप कराइए हर टाइम, टाइम टू टाइम एंड इफ यू आर हेल्दी एंड फिटनेस अगर ऐसा लग रहा है तो आप ज़रूर कराइए, बिकॉज़ हम जो है वो हमें लगता नहीं है और हम जो नहीं है वो हमेशा हम होते हैं।
So basically, if you think you are very fit, go cross check it. If you think you are not healthy, go cross check it. कहीं ना कहीं हमें साइंटिफिकली मेडिकली क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है एंड सपोर्ट फिट इंडिया मूवमेंट हमारे स्पोर्ट्स को सपोर्ट कीजिए लोकल स्पोर्ट्स को सपोर्ट कीजिए नेशनल स्पोर्ट्स को सपोर्ट कीजिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को सपोर्ट कीजिए एंड पार्टिसिपेट कीजिए हर एक अलग अलग स्पोर्ट्स में सिर्फ खेलना ही नहीं लास्ट मोमेंट तक हमें वो आगे बढ़ाना है और हमें उसका पार्ट बनना है so thank you so much if you have any query regarding the Quit India movement, you can contact me on my email ID that is mail to gmail.com or you can contact me and follow me on my Instagram handle that is Read, Write, Love It. So that's it. Thank you so much. I hope you have learned a lot. Over to you, sir. Yeah, hi. Thank you so much, Prem sir. I would request Omkar to please say a vote of thanks. Yeah, sir.